Our top story now, Union Minister Narayan Rane was arrested on Tuesday over his comment on slapping Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray for what he called his ignorance of the year India won independence. He was then granted bail hours later after he cited his health and argued that he was arrested without proper notice or politically motivated charges. Mr. Rane tweeted Satyamev Jayate after he got bail. The minister's lawyer said he'll have to appear now before the police on August 31st and September 13th. सर, अगर आप बता सकें आज अदालत में क्या कुछ हुआ, आप लोगों ने क्या दलीलें दी, सब उसके बाद। अदालत में आज पुलिस की तरफ से उनको रिमांड में प्रोड्यूस किया गया। पुलिस की तरफ से 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, उसके ऊपर हमने अपोज किया। उसके ऊपर बहस होके अदालत ने ऐसे कहा कि पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है और उनको जुडिशियल कस्टडी की ऑर्डर की। उसके बाद उनकी तरफ से जामीन बेल की एप्लीकेशन, उसके ऊपर बहस हो गई और 15,000 की जमानत पे उनकी रिहाई हो गई। क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं? शर्तें बेसिक जो नॉर्मल बेल की होती है वो, और उन्होंने कहा है कि 13 तारीख और 30 तारीख को एसपी अलीबाग के सामने हाजिरी लगाए और अगर ऑफिसर को लगे कि उनकी वॉइस सैंपल की जरूरत है तो उनको 7 दिन की नोटिस देकर उनका वॉइस सैंपल दिया जाए। क्या ये भी हुआ कि पुलिस की ओर से जो पेश की गई थी, जो दस्तावेज जरूरी थे, वो नहीं दिए गए? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं हुई। केस डायरी बराबर मेंटेन नहीं की, ऐसा अदालत ने प्राइमा फेसी उनको होल्ड किया है, लेकिन बाकी इसके अलावा कुछ बात नहीं। क्या इसके अलावा जो और भी कई जगहों पर जो मामले दर्ज हैं, उनके डिटेल्स हम लेके उनके खिलाफ हाईकोर्ट में कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नारायण राणे को यहाँ से बेल जरूर मिली है और इसके बाद आगे क्या कुछ होगा उसके ऊपर कार्रवाई देखेंगे वो, लेकिन जरूर जिस तरह से शर्त रखे गए हैं कि इस महीने के 30 तारीख को, अगले महीने के 13 तारीख को उन्हें पेश होना पड़ेगा एसपी अलीबाग के सामने, और उसके अलावा अगर वॉइस सैंपल चाहिए तो 1 हफ्ते पहले उन्हें नोटिस दी जाएगी और 15,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दी जा रही है। Well, let's go across to Saurabh now for more. So Saurabh, it was an eventful day yesterday, lots of drama, and finally Narayan Rane getting bail late night. Absolutely, almost close to midnight is when he got, bail. He was there, he walked out, but then, tweeted that cryptic message, but very loaded, which is Satyamev Jayate. And obviously, this is a political battle. More than what Mr. Rane said, or whether he deserved to be arrested or not, or whether Mr. Thackeray was right in referring to his aides or not about, the date. But all of that is, sort of minutiae in this, because at the end of the day, what's playing out in all of this is a political battle that's only going to get perhaps even more bitter, with Mr. Rane being entrusted by the BJP to take on the Shiv Sena, and the Shiv Sena, that already shares a fraught relationship with Mr. Rane, also upping the ante, its aggression, showing Mr. Rane that, comments that like that they won't take lying down. Now, obviously, the question for the Sena is that, and the dilemma for the Sena is that they are also in power. So when they have to protest or when there are clashes like these, their party, of course, is also responsible for a law and order situation, while it's also responsible for the law and order situation while being in government. The other thing, of course, is that, this, of course, is going to not end here, because Mr. Rane is, of course, going to continue his rally. Whether he will be more circumspect in the way he, speaks, or whether or what words he chooses to use, it remains to be seen. But clearly, with civic body elections coming up in Maharashtra, with the animosity between the two parties increasing, with the political temperatures in Maharashtra soaring, one can expect that this is not the last we've seen of this entire episode. All right, Saurabh, thanks so much for joining us with all those details and all the developments that have taken place. Well, let's now go across to our guest. We're joined by Ashutosh Srivastav, Advocate Supreme Court, somebody who supports Narayan Rane, and Anand Dubey, spokesperson of the Shiv Sena. आनंद दुबे साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। ये जो कल जो सब हुआ था, all this dramatic episode, violence also by the Shiv Sena, finally Narayan Rane getting bail, many have criticized the Shiv Sena. नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैडम, सबसे पहले बता दूं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इसका हमें बहुत ही गौरव है, बहुत ही अभिमान है।
आपने सुना होगा कि पहले पंडित नेहरू जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में मतभेद होते थे, लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ। आपने सुना होगा कि आदरणीय इंदिरा जी और चंद्रशेखर जी के बीच में मतभेद होते थे, कभी मनभेद नहीं हुआ। आदरणीय शरद पवार जी और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के मतभेद थे, मनभेद नहीं था। विलासराव देशमुख जी और गोपीनाथ मुंडे जी की खूब तलखी होती थी, लेकिन कभी मनभेद नहीं था। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 1.5 से 2 दशक से एक ही पार्टी, एक ही परिवार के पीछे पड़े हैं। बार बार उनको गालियां देते हैं, कभी अपशगुन कहते हैं, कभी कहते हैं कि हम थप्पड़ जड़ देते। तो आप देखिए कि शुरुआत कौन कर रहा है। जब आप अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे तो शिवसेना का तो एक स्टाइल रहा है पूरे देश में। शिवसेना इसलिए जानी जाती है, हिंदुत्व का नारा लेकर चलने वाली पार्टी है और जवाब देना भी जानती लेकिन है। ऐसे इस तरह से एक यूनियन मिनिस्टर को अरेस्ट करना, वो भी 20 साल बाद हुआ है कि कोई यूनियन मिनिस्टर इस तरह से अरेस्ट हुआ है पूरे भारत में। मैडम आपको बता और दूं, उनको केवल 2 वैसे भी रात को व्यक्ति बेल मिल ही गई है, क्योंकि जिस तरह पूरे से अरेस्ट भारत- किया गया, और उनकी गिवन दैट वो यूनियन मिनिस्टर थे और हेल्थ की वजह से उनको बेल भी मिल गई थी रात को। उन्होंने फिर पूरे- ट्वीट किया पूरे- सत्यमेव जयते। गर्गी मैम, पूरे भारत में 2 ही व्यक्ति इससे छूटे हुए हैं, एक महामहिम राष्ट्रपति जी और एक राज्यपाल जी। बाकी कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, आपको कानून के दायरे में ही रहना होगा। आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर द्वारा लिखा गया संविधान आपको सजा देने का काम करेगा। यह एक कानूनी प्रक्रिया है। साइबर सेल अगर पेश करता है तो जरूरी स्वाभाविक सी बात है कि आपको कोर्ट में पेश होना होगा और उसके बाद आपको जमानत मिलेगी या कोर्ट की अगली प्रक्रिया क्या होगी उससे गुजरना होगा। तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी ने कोई जानबूझकर आपको परेशान करने की बात कही है। ये पूरी दुनिया ने देखा है। यदि यही मामला आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में कहा गया होता, तब तक तो देशद्रोह लगा के उसे अंदर डाल दिया गया होता। आप देखिए ना, दोनों की तुलना करिए। अगर प्रधानमंत्री आदरणीय है तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री भी आदरणीय होते हैं। मैं तो कहता हूं हर एक आम आदमी भी आदरणीय है। किसी व्यक्ति जी, के हम कुछ कहने से आशुतोष जी पहले- से पूछते हैं। आशुतोष श्रीवास्तव, योर कमेंट्स ऑन these developments yesterday, finally Narayan Rane getting bail. Yes, I think it was an unfortunate incident which took place. Obviously, nobody will support what he said, but at the same time, the actions which were taken by the investigating agency, the police officers, I find that was not required, because the allegations as put on him was not that serious, which required his immediate arrest the way he was arrested. So I think the police have misused their powers to a greater extent, and he was also not served any notice as per section 41 of Criminal Procedure Code to appear before the police station and make a statement. Had he failed to appear before the police station while giving any such a statement or to non-cooperate with the police investigating agency, then the police could have taken such kind of stringent action. So I think the police should not get influenced by the political vendetta in the country, and they But should more and more perform their we're seeing this happen, given in different states, or even, central, the government really controlling the police and, a lot of these sort of actions which are then questioned by many. Yes, yeah, because nowadays we find so many of cases are being filed before different high courts where the petitioners are filing for the illegal detention, or maybe the atrocities by the police, or maybe misuse of powers by them. Even we have heard recently by the Honorable Chief Justice of this country stating and making such a statement that the investigating agencies, the police officers, they should not misuse their powers and there should not be any atrocities exerted by them Let me on the ask common people. Mr. Dubey about it. Dubey साहब, ये पुलिस का मिसयूज था, आपने ऐसे एक यूनियन मिनिस्टर को जो अरेस्ट किया है, और आगे, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र का है वो आपकी सरकार के अंडर ही है, तो ये जो वायलेंस हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, स्टोन पेल्टिंग हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महाविकास आघाड़ी सरकार कोई भी पुलिस का मिसयूज नहीं करती। यह केंद्र सरकार का अधिकार है, वो यूज करती रहती है। आपने देखा होगा पिछले साल सुशांत सिंह के केस में जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो किस प्रकार सीबीआई को बीच में डाल के और कितनी फजीहत की गई थी सरकार की, और आज 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, सीबीआई ये कहने को तैयार नहीं कि इस केस में क्या हुआ, हमने क्या जांच किया। तो ये सरकारें अपने सहूलियत के हिसाब से बदलती हैं। आज केंद्रीय मंत्री को थोड़ा सा तकलीफ हुई है तो पूरी केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर हमलावर है, क्योंकि आप देखिए
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां नहीं है पूरे देश में उनको नीचा कैसे दिखाएं, उस सरकार को कैसे गिराएं, अपनी सरकार कैसे बनाएं, इसी में लगी रहती है। बाकी मुंबई पुलिस ने वही काम किया है, पूरे विश्व में जानी जाती है, पूरे विश्व में नंबर 1 नंबर 2 की पुलिस रही है। आप देखिए ना, हर केस को बहुत ही बारीकी से सुलझाती है। और इसमें मैं तो कहता हूं कि आदरणीय मोदी जी को इसमें बिचौली करनी चाहिए, इसमें मीडिएटिंग का काम करना चाहिए, समझाना चाहिए अपने मंत्रियों को, और भी बहुत सारे मंत्री हैं उनके, कि आप बड़बोलेपन के चक्कर में देश की जनता के युवाओं को क्या मैसेज। और रही बात कल के युवा सेना के प्रदर्शन की, तो आपको बता दूं, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे कि यदि अपनी माँ का दूध पिए हो तो आके हमारे घर तक दिखाओ, बताइए ऐसी भाषा का आप उपयोग करोगे तो युवा सेना तो नौजवानों की पार्टी कहना है कि ये जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उससे पहले की वजह से, मतलब ये सब टेंशन बिल्ड हो रहा है उसकी वजह से यह एक बनाया गया माहौल है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक पार्टियां हैं, तो चुनाव लड़ेंगी, चुनाव जीतेंगी, हारेंगी, तो चुनाव तो होने ही वाले हैं समय समय पे, इसको चुनाव से नहीं देखना चाहिए। लेकिन आप जिस पार्टी ने आपको नगर सेवक से विधायक, विधायक से मंत्री, मंत्री से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से अपोजिशन लीडर, आपको क्या नहीं बनाया, और आप एक तरफ जाके आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के स्मृति स्थल पे नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की वजह से और शिवसेना की वजह से हूँ। दूसरी तरफ आप उन्हीं के पुत्र के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करते हो, शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी करते हो, तो देश आपको देखता है ना कि आप कहते क्या हो, आप कहना क्या चाहते हो। All right, we'll leave it there. Thank you so much, Anand Dubey and Ashutosh Srivastava, for speaking to us here at NDTV.